اس کا 19 باب اس کی 7 ایسے پڑھیں گے. آؤ ہم ہو اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کتانی کپڑا پہننے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہے. آمین. آمین. دیکھ رہے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کی دلہن ہے. تو مکاشفہ 19 باب کے 7 ورس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آؤ ہم خوشی کریں اور شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برے کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنا آپ کو تیار کر لیا. ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس کی دلہن نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے. خوشی کا موقع ہے، ہم خوشی کریں، اس لیے کہ آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں. نہایت شادمان، یہ شادمانی جو ہے یہ ہمیں اپنے دولہے کی طرف سے ملتی ہے، یسوع مسیح کی طرف سے ہے. اسی لیے اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. اپنا اطمینان جس طرح دنیا دیتی ہے اس طرح نہیں، اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں. اور ہمارے مسیح کے پاس، ہمارے دولہا کے پاس جو اطمینان تھا وہ یہ تھا کہ میں مر جاؤں گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. اور ہم اس بات سے نہایت شادمان ہوں، اس لیے کہ دولہا زندہ ہے تو اس کی دلہن بھی زندہ رہے گی، اس کی دلہن اس کے ساتھ رہے گی، کیونکہ دلہن نے تیاری کر لی. اور اب کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ رہ جائے. اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ پس غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی بھی خدا کے فضل سے محروم نہ رہے. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم غور سے دیکھتے رہیں کہ کوئی بھی خدا کے فضل سے محروم نہ رہے. یہ فضل سے ہے، یہ فضل سے ہمیں شادمانی ملی ہے. ہم شادمان، نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، تمجید کے گیت گائیں، دولہے کی آنے کی خوشی میں کہ وہ آ رہا ہے، دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور دیکھیں جسمانی طور پر اگر کسی کی شادی ہوتی ہے تو ابھی دولہا نہیں پہنچتا تو اس کی دلہن جو ہے وہ پہلے سے ہی پارلروں میں جا جا کر تیاریاں کرتی ہے. کیوں تیاری کرتی ہے؟ کہ وہ تیار ہو کر دولہے کے ساتھ جانا چاہتی ہے. تو میرے عزیزو، ہم اس کی دلہن ہیں اور دلہن میں کوئی داغ دبا یا جھری نہیں. ایسی دلہن ہونی چاہیے جو اس کے قد تک پہنچتی ہو، اندازہ کے مطابق اس کے قد تک پہنچے. مثلاً کہ اس کے کندھے تک دلہن کا قد ضرور ہونا چاہیے. کوئی بھی دولہا کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ اپنی بونی سی دلہن کو ساتھ لے کر جائے. اور وہ ہمارا دولہا جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ دولہا ہے، کیونکہ اس نے اپنی دلہن کے لیے اپنی جان دی. اور آگے ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 21 باب اور اس کی 2 آیت سے دیکھتے ہیں. شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا، اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. میرے عزیزو، یہ شنگار جو ہے یہ دلہن کے لیے بہت ضروری ہے. شنگار ہونا چاہیے. شنگار کی ہوئی دلہن کو وہ لینے کے لیے آ رہا ہے.
तो श्रृंगार क्या है? ये सुर्खी पाउडर वाला श्रृंगार नहीं है, ये एक अलग श्रृंगार है। ये कलाम उसके दिल पर लिखा हुआ होना चाहिए और वो बेदाग होनी चाहिए दुल्हन, और उसके चेहरे पर कोई झुर्री नहीं होनी चाहिए। ये श्रृंगार है मेरे अजीजों। हमने उसके साथ जाना है, तो जैसा वो हमें चाहता है वैसी दुल्हन बनेंगे तो उसके साथ जाएंगे। ये उसके साथ जाने के लिए तैयारी के दिन है। आज का दिन जो है ब्लेस्डफुल दिन है। आज का दिन जो है एक और कदम उसमें बढ़ जाने का दिन है। आज का जो दिन है बरकत वाला दिन है। आज का जो दिन है हमें और एक दिन जिंदा उसने रखा कि हम और ज्यादा उसके करीब हो सके, और ज्यादा तैयारी कर सके, शफाफ और महीन कतानी कपड़े पहन सके। तो ये तैयारी के दिन है मेरे अजीज। तैयार रहे, बारिश से ना डरे, धूप सर्दी गर्मी से ना डरे, क्योंकि एक हौलनाक दिन है। गर्मी के दिनों में हमारे लिए इबरतनाक बात है, सीखने वाली है कि हम उस आग में अगर पहुंच गए तो हमारे साथ क्या होगा। गर्मी बर्दाश्त नहीं हम कर सकते, सर्दी मेरे अजीजों हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बारिश में हम भीग जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम आराम पाना चाहते हैं, अगर हम रास्त होना चाहते हैं, अगर हम सुकून में रहना चाहते हैं, अगर नहायत शादमान रहना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों उस दूल्हे के आने के लिए तैयार, क्योंकि दूल्हा आने वाला है और दूल्हे के पहुंचने तक हम तैयार हो जाएं। ऐसा ना हो कि उन 5 कुमारियों की मानद हम उस वक्त अपने लिए तेल ढूंढने के लिए निकल जाएं, अपनी तैयारी के लिए निकल जाए कि हम तैयार होकर आ जाएं, दूल्हा पहुंचने तक तैयार हो जाए, फिर कभी हमें मौका नहीं मिलेगा। फिर दूल्हा पहुंच जाएगा और शादी की जियाफत में हम अंदर दाखिल नहीं होने देगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे। दरवाजे बंद होने से पहले मेरे अजीजों ऐसी तैयारी कर लें कि दूल्हे के साथ हवा में उड़े। हमारा दूल्हा जो है वो दुनिया की मानंद नहीं है, वो दुनिया वाला दूल्हा नहीं है, वो आलमे वाला का दूल्हा है, और वो आलमे वाला पर हमें ले जाने के लिए आ रहा है। वो दूल्हा जो है वो दूल्हा पाक दूल्हा है। वो दूल्हा जो है उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी है। वो दूल्हा जो है वो बदी को देख नहीं सकता, वो गुनाहों से कराहत करता है। वही उसने कहा, बाप मुझसे ये प्याला टल जाए तो भी तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। फिर भी बाप ने कहा, नहीं, तू मेरी बहू के लिए, अपनी दुल्हन के लिए उठा ये प्याला, गुनाहों को उठा ले और सलीब पर चढ़ जा और चुपचाप अपनी जान दे। तो उसने ऐसा ही दुल्हन के लिए उसने अपनी पसली में नेजा खाया है। आदम की दुल्हन उसकी पसली से निकली, और हमारे यीशु मसीह की बने आदम की दुल्हन भी जो है वो भी उसके पसली में नेजा मारने के साथ लहू से पाक धुली हुई दुल्हन है। तो ऐसी दुल्हन के लिए वो लेने के लिए आ रहा है। और हम एक और हवाला देखते हैं 21 बाब की 9 वर्ष। ये नोट करें, देखें, एक जगह नहीं दुल्हन का जिक्र कि एक ही जगह पर दुल्हन लिखा है। मैं आपको कई हवाले पढ़ाऊंगा, पढ़े 21 की 9 जी। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आंखों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और आमीन। फरिश्ता कह रहा है यूहन्ना आरफ को कि आह, मैं तुझे दुल्हन भरे की बीवी दिखाता। हम उसकी भेड़े हैं, इसीलिए वो भर रहा है। तो भेड़ी जो होती है वो नारी है और बर्रा नारी है, तो हम उसकी बीवी हैं।
कलीसिया यीशु मसीह की बीवी है, यीशु मसीह की दुल्हन है, और उसने अपनी दुल्हन के लिए जान तक कुर्बान की है। कोई शख्स इस दुनिया में अपनी दुल्हन के लिए जान नहीं देता, कोई नहीं देता। मैंने देखा, कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती कि किसी ने अपनी जान अपनी बीवी के लिए दी हो, लेकिन वो दूल्हा, मेरे अजीजों, वो दूल्हा एक ऐसा दूल्हा है जिसकी मिसाल इस दुनिया में नहीं मिलती। वो बेमिसाल दूल्हा है, और बेमिसाल दूल्हे की दुल्हन भी बेमिसाल होनी चाहिए। वो बारिशों से घबराने वाली, गर्मी से घबराने वाली, सर्दी से घबराने वाली नहीं होनी चाहिए, और दुश्मन के साथ उसका मेल मिलाप नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि यीशु मसीह का दुश्मन कौन है? जानते हैं आप? यीशु मसीह का वो दुश्मन इसीलिए है कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा है। एक्चुअल में तो वो दुश्मन हमारा है, दुल्हन का ही वो दुश्मन है। वो दुल्हन को ही बर्बाद कर देना चाहता है, किसी का घर आबाद नहीं रहने देना चाहता। वो हमारा दुश्मन है। तो हमारी दुश्मनी इब्लीस के साथ, और इसीलिए हमारा दूल्हा जो है वो उसे दुश्मन कहता है। इसीलिए वो दूल्हे के साथ भी उसने दुश्मनी की है। देखें, अभी भाई बता रहा था कि जो मुखालिफे मसीह हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह की, हमारे दूल्हे की मुखालफत की है, सबसे पहला मजहब कौन सा है? यहूदी है। यहूदियों ने यीशु मसीह के बदले बराबा ले लिया। अगर हम देखें तो यीशु मसीह की जब अजमाइश हो रही थी तो यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे पीछे आ जा। इब्लीस को कहा कि तू मेरे पीछे चला। साफ ज़ाहिर है कि यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू मेरे पीछे आ जा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने बाप के नाम से आता हूं तो तुम मुझे कबूल नहीं करते, और अगर कोई अपने ही नाम से आ जाएगा तो तुम उसे कबूल कर लो। झूठा मसीह आ जाएगा तो तुम उसे कबूल कर लो। तो ये यहूदियों ने सबसे पहले मुखालफत हमारे यीशु मसीह के खिलाफ की। और दूसरा जो मजहब है जो हमारे मसीह का मुखालिफ है, वो हमारा ये पड़ोसी, वो हमारे ये मुसलमान लोग, उन्होंने मसीह की मुखालफत की। उनके नजदीक एक और मसीह है। ये जो मसीह हमारा दूल्हा है, ये जो मसीह जिसने हमारे लिए जान दी, कुर्बानी दी, उनके नजदीक ये वो नहीं है। उनके नजदीक ये है कि एक फरिश्ता उसे उठाकर ले गया और उसकी जगह उसका हम शक्ल सलीब पर चढ़ा दिया, और उनकी नजर में कोई कफारा नहीं हुआ, उनकी नजर में कोई भी कफारा नहीं और कोई निजात नहीं। उनके अपने अमाल निजात हैं, हमारे अपने काम जो है वो कुछ भी नहीं है। हमारे यीशु मसीह के काम, हमारे यीशु मसीह की जो हमारे यीशु मसीह ने जो काम किए हैं, जो हमारे लिए उसने कफारा दिया है, वही हमारी निजात है, वही खुदा की कुदरत है हमारे नजदीक, और वही है जो हमें बचाने वाला है, और वही है हमारा निजात दहिंदा, और वही है जिसने हमें ऐसे एक कुएं से निकाला है जिस कुएं से कोई निकल नहीं सकता था। ऐसा बोझ उसने हमारा उठाया है जो हमारे कंधे पर था, जो हमारे ऊपर था, और हम में से कोई भी उसे नहीं नीचे फेंक सकता था, हम में से कोई भी उसे उतार नहीं सकता था। मुसीबत ज़दा थे, मुसीबत में फंसे हुए लोग थे, वो ऐसी आजादी बनकर आया, हमारी निजात बनकर आया, वो हमारा निजात दहिंदा है। उसने हमें उसने इस कुएं से निकाला है, उसने हमारा बोझ उठा लिया है। मुझे अपना बोझ दे दो, और हम कैसी दुल्हन है, हमें अपना उसे बोझ भी नहीं देते, हम अपना बोझ भी उसे नहीं देते। वो कहता है थके मांदे बोझ के दबे हुए मेरे पास हो, मैं तुझे आराम दूंगा। वो हमें आराम देना चाहता है, हम उसे अपना बोझ नहीं देना चाहते। और ये कब तक चलता रहेगा? ये बहुत आखिर जमाना है, और ये एंड हो चुका है। अब वो आने वाला है, अब वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। ये नहीं, अगर मैं उसका नहीं बनूंगा, अगर मैं उसकी दुल्हन में शुमार नहीं होगा, तो वो मेरी जगह और 10 खड़े कर सकता है। कोई अपनी
कोई ये ना कहे मैं खुदा के लिए आता हूं चर्च, नहीं, खुदा के लिए नहीं, अपने लिए आता है, अपने लिए आता है। वो उसको अपनी जान की जरूरत नहीं, अगर जरूरत है तो वो दुल्हन में शुमार हो जाए, वो दुल्हन के अंदर आ जाए। वो दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, किसी ऐरा गहरा को नहीं लेने के लिए आ रहा, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। उस दुल्हन में हम शुमार हो जाए, उस दुल्हन में हम आ जाए। काशवा में एक और वर्ष देखिए, 22 बाप की 17 वर्ष। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र है। और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो कहे, और जो कोई चाहे आबे हयात मुफ्त ले। आमीन। हालेलुया। रूह और दुल्हन कहती है आ, रूह भी कहती है आ, और दुल्हन भी कहती है आ, इसलिए कि आबे हयात मुफ्त मिलने वाला है। आबे हयात समझते हैं क्या है? जिंदगी है, जिंदगी। वो हयात का दरख्त जिसके ऊपर पहरा लग चुका था, उस दरख्त के पास आप जाने का अख्तियार पाएंगे और उस दरख्त पर से आप फल खाएंगे। मैं आपको एक ऐसी मूवी दिखाऊंगा जो आप देखकर आप कांप जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी, आप घबरा जाएंगे, आप कभी भी गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। आप ऐसे खौफनाक डरावनी जहन्नम को देखेंगे कि ये कैसी है। अगर इसमें किसी ने जाना है तो वो क्या होगा उसके साथ। ये मैं आपको दुल्हन दिखा रहा हूं, जो कलीसिया है, जिसे दूल्हा लेने के लिए आ रहा है, वो दुल्हन दिखा रहा है। और मैं वो मूवी आपको दूंगा, आप सब देखना और फिर आप फैसला करना कि आप दुल्हन में शुमार होना चाहते हैं या उस गंदगी में जाना चाहते हैं जहां बदबू है, सांस लेना मुश्किल है, और सांस इससे ज्यादा कोई सांस वहां नहीं दे सकता, बस ऐसा ही कर सकता है। और फिर वहां वो अबलीस जो यहाँ हमारा दुश्मन है, वहां भी उन लोगों को मारता है, उन लोगों को चीर फाड़ कर देता है, इसलिए कि वो दुश्मन है। दुश्मन दुश्मन ही रहेगा, बेशक उसके साथ कोई जहन्नम में जाकर चले, फिर भी वो दुश्मन रहेगा, दोस्त नहीं बन सकता। और ये दूल्हा हमारा दोस्त है, ये दूल्हा हमारा दोस्त है, ये है हमारा दोस्त जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है। अभी और हम हवाले देखेंगे, खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसकी 11 बाब की 2 वर्ष देखेंगे। हालेलुया, 11 की 2। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 2 में लिखा, मुझे तुम्हारी बाबत खुदा से गैरत है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, ताकि तुमको पाक दामन कवाली की मानद मसीह के पास हासिल करूं। आमीन। ये है खुदा का सच्चा खादम। रसूल कहता है, रसूल कहता है मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। हमारा खुदा गैरतमंद खुदा है, और जो गैरत रखता है वही उसका दुल्हन में शुमार हो सकता है, और वही उसका फर्जंद है जो गैरत रखता है। हम गैरतमंद खुदा की औलाद हैं, हम उसके फर्जंद हैं, और हम उसकी बहू हैं गैरतमंद की। उसने अपनी बीवी के लिए गैरत रखी है या नहीं? मरा है, गैरत रखकर मरा है कि कोई इब्लीस, कोई मेरा दुश्मन, कोई मेरी बीवी का दुश्मन इसे छीन ना ले, मैं इसे वापस लेता हूं। जो बाग अदन में छीन गई थी, उसे गतसमनी बाग में गुनाहों के साथ कबूल कर लिया। भाई उस दुल्हन के गुनाह भी उसने उठा लिए, उठाए अपने कंधों पर, लेकर गुनाह सलीब पर चढ़ गया, और वो मरा। इसलिए मरा कि हम बच जाए,
اس لیے مرا کہ اس کی بیوی اس کی دلہن بچ جائے. تو میرے عزیزو ہم بھی خدا کی سی غیرت رکھتے ہیں. غیرت مند دلہن ہونی چاہیے. اگر ہم غیرت رکھیں گے تو پھر کبھی بھی ابلیس کی چال میں نہیں پھنسیں گے, ابلیس کے پیچھے نہیں چلیں گے اور ابلیس کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے بدنوں پر اختیار رکھے. ابلیس کو کبھی بھی موقع نہ دے, کیونکہ وہ دوڑ رہا ہے ببر شیر کی مانند, کس کو پھاڑ کھاؤں. اس سے بچو, بچو اس سے, غیرت رکھو. خدا کی سی غیرت رکھتا ہوں کیونکہ میں نے ایک ہی شوہر کے ساتھ تمہاری نسبت کی ہے. ایک ہی شوہر ہے ہمارا جس کے ساتھ ہماری نسبت ہے, وہ ہمارا نسبتی شوہر ہے. یہ دلہن اس کی نسبتی ہے, نسبت دی ہوئی, نام دی ہوئی. نسبت کی ہے تاکہ تم کو پاک دامن کماری کی مانند مسیح کے پاس حاضر کروں. ہم پاک دامن اگر ہونا چاہتے ہیں تو ابلیس کو موقع دیں. ابلیس ہمیں پاک دامن نہیں رہنے دینا چاہتا. وہ ہماری دامن مطلب جھولی ہوتی ہے اور وہ ہماری پوشاک کے اوپر داغ لگانا چاہتا ہے, داغ لگانا چاہتا ہے, ہمیں داغدار کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم پاک نہ رہ سکیں. وہ ہمارا دشمن ہے اس لیے, اور ہمارا ایک دوست ہے, ایک ہمارا اچھا دوست ہے, ایک ہمارا اچھا دولہا ہے جس نے اپنے پاک لہو سے ہمارے دامن دھو دیے اور داغ ہمارے نظر نہیں آتے. کفارے کا مطلب ہوتا ہے ڈھانک دینا. اس نے کفارہ دے کر ہمارے گناہوں کو ڈھانک دیا. تو یہ اس بات کو ہم سوچیں, دیکھیں اور بھی حوالے دیکھیں گے. افسیوں کی کتاب 5 باب اس کی 29 آیت سے 32 آیت مقدسہ. کبھی کسی نے اپنے شوہر سے دشمنی نہیں کی, بلکہ اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی, بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسا کہ مسیح کلیسیا کو, اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں. اس سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. یہ بید تو بڑا ہے, لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں. اور ہاں تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے, اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی ہے. کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی. کیوں نہیں کرتا اپنے جسم سے دشمنی؟ اس کو پتا ہے مجھے درد ہوگی, دشمنی کروں گا میرا جسم کمزور ہو جائے گا. اگر میں اپنے جسم کو آگ میں جلاؤں تو جل جاؤں گا. کوئی اپنے جسم سے دشمنی نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں کرتا. بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کو. کیوں مسیح نے ہمارے ساتھ دشمنی نہیں کی؟ ہمیں اس نے پالا اور پرورش کی ہے. وہ ہمیں پالتا ہے, پرورش کرتا ہے, کیونکہ ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں. اس لیے اعضاء ہیں. تو بیوی اور شوہر دونوں ایک تن ہیں, وہ ایک بدن ہیں. وہ اپنے دشمن سے کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا دشمن چھین لے. کوئی یہ دیکھو جسمانی طور پہ دیکھ لو تو چاہتا ہے کہ مجھ سے میری بیوی چھینی جائے, میرے بدن کے اعضاء, میری اولاد چھینی جائے. کوئی نہیں چاہتا, لیکن دشمن چاہتا ہے. یہ ذرا اس کو بند کریں, ذرا تھوڑا بند کر دیں. جی تو اس لیے کہ ہم اس
के बदन के अज़ू। हम हैं उसके अज़ा, वो हमारा बदन है, हम सब अज़ा हैं। इसलिए उसने हमारे साथ दुश्मनी नहीं की, दोस्ती की, भलाई की। इसी सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। हम दुल्हन हैं और मसीह के साथ हम एक जिस्म हैं, एक हैं हम। बाप हमें इसलिए फर्जंद कहता है, बाप हमें इसलिए अपने बेटे कहता है कि हम एक हैं, मसीह में एक हैं, और बाप मसीह में है और मसीह बाप में है, वो भी एक हैं और हम भी एक हैं। देखो कैसी इकाई है, बाप यीशु में है और यीशु हम में है और हम एक हैं। इकाई है हमारी। इस इकाई को मेरे अजीजों ना भूलिए, इसको ना भूलिए। देखिए ज्यादा तो नहीं टाइम हो चुका, नहीं तो कुछ चंद हवाले देखेंगे हम। चूंकि कभी किसी आदमी ने अपने बदन के साथ दुश्मनी नहीं की, ये है हमारा अच्छा दोस्त। हम देखेंगे कि सुलेमान अपनी गज़लात में मसीह की कलीसिया की मोहब्बत को यूं बयान करता है। निकाले 6 बाब जी, देखिए कभी ऊपर कभी किसने पढ़ी नहीं, उसे समझ नहीं कहाँ है, पढ़ेंगे तो है मेरी प्यारी तिर्सा की माने खूबसूरत है, यरूशलेम की माने खुश मंजर और अलमदार लश्कर की माने मुहीब है। अपनी आंखें मेरी तरफ से फेर ले, क्योंकि वो मुझे घबरा देती है। तेरे बाल बकरियों की गला की माने है, जो कोहे जिलाल पर बैठी है। आमीन। तो ये सुलेमान भी दुल्हन और दूल्हे की बाबत हमें बता रहा है। वो एक तस्वीर हमें दिखा रहा है कि ये दूल्हा जो है किस तरह मोहब्बत करता है दुल्हन से, और दुल्हन को किस तरह से वो चाहता है और देखता है। ऐ मेरी प्यारी, तू तर्जा की मानद खूबसूरत है। देखो हम ये खूबसूरत दुल्हन की बात कर रहे हैं, जिसके चेहरे पर कोई झुर्री नहीं होनी चाहिए, कोई उसके दामन पर दाग या धब्बा नहीं होना चाहिए, ऐसी खूबसूरत दुल्हन। ये लोग इस गजल को नहीं पढ़ते और कहीं तरीके से, और लोग बिगड़ जाते हैं और तरफ चले जाते हैं, लेकिन ये खुदा का कलाम है और यही मसीह की दुल्हन, मसीह की और दुल्हन की कहानी है। इसके यरूशलेम की मानद खुश मंजर, यरूशलेम की मानद। तो यरूशलेम जो है ये आलमे वाला पर भी यरूशलेम है, जो नया उतरेगा उस यरूशलेम की मानद खुश मंजर, खुश मंजर और इल्मदार लश्कर की मानद महीब है। लश्कर भाई, ये दुल्हन जो है इल्मदार है या नहीं? इसके पास मसीह की अकल है, इसके पास हिकमत कुल की अकल है। मसीह की अकल हिकमत कुल की अकल है। ये इल्मदार है, इसके पास इल्म है, ये जानती है कि मैं किस तरह पाक बनूंगी और किस तरह दूल्हे के साथ रहूंगी। ये जानती है। हमने इस तरह इल्मदार होना है। ये नहीं
कि एक दिन चर्च आए अगले दिन चर्च ही ना आए, ये कैसा है? ये बेवकूफ की तरह है। और हम में मसीह की अकल है, हम चर्च भी आएंगे, इबादत भी करेंगे और दूल्हे के साथ रफाकत भी रखेंगे, तो हम एक तन हैं। अपनी आंखें मेरी तरफ से फेर ले, क्योंकि वो मुझे घबरा देती हैं। देखें पासदान लोग जो हैं, ये फकीरगी की बात है। फेरो और मसीह को तकते रहो। ईमान के बानी यीशु मसीह को कामल करने वाले को तकते रहो, ये लिखा है, ये लिखा है। हमने तकते रहना है। और हवाले देखते हैं इसी में। गज़ल 4 की 6 आयत देखनी है। भेड़ों के गला की मानित है, जिनको गुस्ल दिया गया हो। नहीं कौन? 4 की डर और साया बड़े, हाँ बड़े। जब तक दिन ढले और साया बढ़े, मैं मोर के पहाड़ और लुबनान के टीले पर जा रहूंगा। लुबान के टीले पर जा रहूंगा। पढ़े। जब तक दिन ढले और साया बढ़े, मैं मूर के पहाड़ और लुबान के टीले पर जा रहूंगा। ऐ मेरी प्यारी, तू सरापा जमाल है, तुझ में कोई ऐब नहीं। लुबनान से मेरे साथ ऐ दुल्हन, लुबनान से मेरे साथ चली आ। अमाना की चोटी पर से, सुदेर और हरमोन की चोटी पर से, शेरों की मांदों से, चीतों के पहाड़ों पर से नजर दौड़ा। ऐ मेरी प्यारी, सोचा तूने मेरा दिल लूट लिया। आमीन। देखें, बात दुल्हन की है और वो कहता है कहां से गुजर कर तू चली आ। खौफ न कर, वो शेरों के मुंह बंद कर देता है, आग में जलने नहीं देता अपनी दुल्हन। और कौन सी जगह है जहां से वो हमें निकाल नहीं सकता? कोई घबराहट वाली बात नहीं, बस निकल आओ उसके पीछे। ये जोजा भी बीवी को कहा जाता है, दुल्हन भी बीवी को कहा जाता है, और बीवी दुल्हन है, कलीसिया है। ये ऐसी कलीसिया को वो लेने के लिए आने वाला है, ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है, और इसी कलीसिया के साथ वो वादा करके गया है, मैं जाता हूं और फिर आता हूं ताकि तुम्हें अपने साथ ले लूं। जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। वो अपने साथ हमें रखेगा, अपने साथ रखना चाहता है, और जिस दुल्हन के अंदर दाग दबा है उसे वो अपने साथ नहीं लेने के लिए आएगा। पाक और महीन कतानी कपड़े पहने दुल्हन वाले लिए आएगा। एक और वाला देख लेते हैं, गजल 7 की 5 है। ये आखिरी वर्ष है, हम देखते हैं। और बहुत सारे हवाले मैं पेश कर सकता हूँ दुल्हन के, क्या ज्यादा हो जाता है। सात की जी 5 है। तेरा सर तुझ पर निर्मल की मानित है, तेरे सर के बाल अरुणानी है। बादशाह तेरी जुल्फों में असीर है, ऐ महबूबा ऐशो इशरत के लिए तू कैसी जमीला और जांफज़ा है। आमीन। छोड़। देखिए, ये जो कहानी है ये खूबसूरत दुल्हन की है, और खूबसूरत दुल्हन है, और ये पाक और पकीज़ा दुल्हन और पाक दुल्हन है। ये कोई जिस्मानी तरह के दूल्हा दुल्हन नहीं है जिनकी ये कहानी है। तेरा सर तुझ पर किरमल की मानद है,
یہ ساری بات وہ خوبصورتی کی کر رہا ہے کہ خوبصورت ہے اور خوبصورت بے گناہ ہے تو، اور یہ دلہن اس نے پاک کی ہے گناہوں سے، اس کے گناہ اس نے لے لیے ہیں اور اپنے خون کے ساتھ دھو کر پاک کر دی ہے، اور گناہ اب نظر نہیں آتے، لہو نظر آتا ہے۔ دیکھیں کوئی سفید کپڑا اور اس کے اوپر آپ لال رنگ چڑھا دیں تو اس کی سفیدی نظر آئے گی؟ کیا نظر آئے گا؟ لال رنگ۔ یہ داغ دبے لال لہو کے نیچے دب گئے ہیں، اب نظر نہیں آتے۔ باپ دیکھتا ہے تو لہو نظر آتا ہے، لہو دلہن کے اوپر لہو نظر آتا ہے، دولہے کا برے کا لہو، اور باپ کو داغ نظر نہیں آتے، اور وہ مبارک ہے وہ جس کی خطائیں ڈھانپتی گئی ہیں اور ان کے گناہوں کو وہ یاد بھی نہیں کرتا۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں ایک کا گناہ تو یاد رکھ لیا، میں فلانا گناہ کی تھی، فلانا کی، میں گناہ گار ہوں۔ ایسا نہیں کہہ رہا، ہم گناہ گار نہیں ہیں، ہمارے گناہ یسوع نے اٹھائے ہیں، ہم یسوع مسیح کی راست بازی کو پہنے ہوئے ہیں، اور یسوع مسیح کی راست بازی پہن کر ہم راست باز ہیں، ہم گناہ گار نہیں ہیں، اور ہم راست باز دلہن کی مانند ہیں، پاک ہیں، شفاف ہیں، مہیب ہیں، اب داغ دبا نہیں ہم پر رہا، اور ہم اس دلہے کی دلہن ہیں جس نے ہمیں پاک کیا ہے، اور وہ پاک دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے، اور ہم اب اس میں کھڑے رہیں مضبوطی کے ساتھ۔ خیال کریں کہ جب توبہ کی تھی وہ وقت جانے کہ توبہ کس قدر ہم نے جنون میں آ کر کی تھی، اور اب ہم ٹھنڈے کیوں ہو چکے ہیں۔ توبہ کی بپتسمہ لیا بڑے جوش کے ساتھ، سرگرمی کے ساتھ، اور اب ہم ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، ٹھنڈے نہیں، وہ نیم گرم کو اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہے، سرگرم میرے عزیزوں کو ہے، سرگرم، تاکہ وہ جلد آنے والا ہے، بہت جلد آئے گا اور ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ تو آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے بڑی برکت ہے، آمین۔